Hi, everyone. Who wants to start first? Hi, Larry. How are you? Hello, I'm fine. Well, I can. I have. I have two poems. These poems are dealing with. Hold on. Um, they are dealing with abuse. I don't. I don't go. I don't go deep into it. I just know that abuse and mental illness causes pain and all that. So I just wanted to touch the surface, but not go too deep. But then let people know that there's a way out. So hold on. Um, the first, the first one, the first poem is called "Dealing." Dealing. Abuse comes in many shapes and forms. The common denominator is that it causes so much inner pain and detrimental harm, leading to a path of self-destruction where the victim feels less than zero and learns to value nothing. Loneliness and isolation is the feelings that takes over and overwhelms the embittered and troubled soul, has animosity for others daily like a forest fire rages and uncontrollably grow. Over and over again, it plays out and rears its ugly head as hopelessness fills a now empty vessel stuck in limbo instead of getting past and successfully dealing with it and moving ahead. I feel your pain. You don't have to deal with it alone. Come into my safe arms and I protect you from this sorrow, keeping the past in this place and looking forward together to a better tomorrow. That's dealing. That's my first one. Nice. That's a good one. It's very nice. Okay, the second one is called Dictate. I was lost. I had no direction, totally void of love and affection, overwhelmed with feelings of insecurity and self-doubt. More and more each day, I felt I had no escape, yes, no way out. My existence was filled with so much hurt, pain, and gloom. I had nothing to look forward to except that of misery, and I accepted my fate that my life was doomed. I knew I was strong, and I couldn't let the incident define me. I was at the crossroads, most definitely. I could either be sad or take away the positive and keep moving forward and becoming once again truly happy. I knew what had happened to me also happens to others, and that the intensity of that life defining moment is an incident that can smother the life right out of you. One thing I now know is don't let bad experiences dictate your fate, but let the power of forgiveness and love see you through. That's Nice. Good. It's very nice. Great, Larry. That was great. So, now who wants to perform? Hello, ma'am. Can I perform? Yes, yes. Yeah. Hello, everyone. This is Mayur Nikam from Nasik, Maharashtra. किरण मैम ने तो आज धमकी दिया था सब जल्दी आ जाओ, सब लेट आते तो 2 बजे से ऑनलाइन आ गए जूम मीटिंग पे। आज का मेरा टॉपिक है लॉकडाउन और लॉकडाउन में हुए हैं किससे। एक्चुअली लॉकडाउन चालू हुआ 23 मार्च से समथिंग, और 22 मार्च को मैं हमारे दोस्तों के साथ में हम फार्म हाउस पे गए थे। फार्म हाउस ने हमने बहुत एंजॉय किया, खतरनाक, बहुत बढ़िया एंजॉय किया। और जब हम रिटर्न आए और सेकंड डे में मैंने पुलिस वालों के इतने डंडे खाए हैं, मेरे हिप्स लिटरली 2-2, 3-3 इंच बढ़ गए हैं।
लड़कियां मुझसे पूछती थी कि इसके पीछे राज क्या है, मुझे टिप्स के लिए मैसेजेस आते थे। मेरे दोस्त मुझे गलत नजर से देखते थे, इतने रट्टे खाए। बाद में जब भी मैं बाहर निकलता था तो लोहे का पतरा अपने हिप में अपने पैंट के अंदर डाल के निकलता था, कभी भी वार हो सकता है। और मेरा जो काम है ये मार्केटिंग का काम है और इसेंशियल सर्विसेज में आता है। सो मैं कंटिन्यू घूमने का ही काम था मेरा, ऐसा नहीं था। सो इसेंशियल में स्टार्टिंग में बताता हूँ, सैनिटाइजर का जब यूज चालू हुआ, अगर अपन ने स्टार्टिंग में ये लॉकडाउन के स्टार्टिंग में किसी के पास अगर सैनिटाइजर अगर मांगा ना, तो उसका मुंह ऐसा होता था जैसे उससे उसकी किडनी मांग ली, ऐसा वो सामने वाला मुंह करता था सैनिटाइजर अगर मांगा तो। बाद में सैनिटाइजर तो इतना मतलब कचरा हो गया सैनिटाइजर का, अगर दूर से भी एक आधा बंदा दिखा तो पूरे उसके बॉडी में सैनिटाइजर मारते देते थे। और सैनिटाइजर की जो बोतल थी ना, वो बोतल कॉलिन जैसी बोतल थी, कॉलिन की बोतल थी, और रेगुलर बोतल थी उसके जैसी बोतल थी। और जहां जहां पर भी जाता था तो अपने हाथ से हैंड सैनिटाइजर हाथ में मार लेता था। एक दो बार मैंने कॉलिन पे भी हाथ में मार लिया था, सामने वाले बताए कि वो कॉलिन है सैनिटाइजर नहीं है, हाथ फुल चमकने लगा था मेरा। और एक बार हैंड वॉश जो होता है, हैंड वॉश एक ने एड़े ने रखा था उसके टेबल पे, मैंने हैंड वॉश मेरे हाथ में डाल दिया। हैंड वॉश डाला और मैंने हाथ ऐसा मेरा किया और वो वैसा के वैसा लिक्विड वैसा ही रहा। मुझे लगा सैनिटाइजर जैसा वो उड़ जाएगा, हाथ क्लीन हो जाएगा। मेरा पूरा हाथ एकदम ये हो गया, चिपचिपा हो गया। मैं जो जिस एरिया में था वहां से 500 मीटर तक किधर भी पानी नहीं था, वो एकदम चिकट में। तो इतना गंदा फील हो रहा था वो हैंड वॉश मेरे हाथ में डालते। वो पूरा हैंड वॉश मेरे पूरे बॉडी में लगा दिया और बाहर आया। बाहर जैसे आए वैसे बारिश शुरू हुआ, बारिश हुआ तो मेरे पूरे बॉडी में झाग झाग हो गया था, पूरा बॉडी पे झाग झाग झाग। पब्लिक मुझे बोलती थी ये नहाते नहाते बाहर क्यों आ गया भाई तू। ऐसे लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे किस्से हुए हैं। बाद में लॉकडाउन में जब इंटरनेट पे हर कोई बंदा डाल रहा है घर बैठे घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, 1 घंटे में लाख रुपए कमाओ, 2 घंटे में लाख रुपए कमाओ, इतने मैसेजेस। मैंने उसको रिप्लाई किया, भाई मुझे भी 1 घंटे में पैसे कमाने हैं। उसका मुझे रिप्लाई आया, अगर तुझे 1 घंटे में लाख रुपए कमाए तो उसने नीचे उसका अकाउंट नंबर दिया और बोला इसमें ना 500 रुपए ट्रांसफर करो। सो मैंने उसको बोला कि 1 घंटे के बाद मैं लखपति होने वाला हूँ, उसमें से तो 500 नहीं 5,000 माइनस कर ले। पर अभी मुझे स्कीम बता दी 1 घंटे में लखपति कैसे होने। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इतने स्कीम चालू है सोशल मीडिया पे, 1 घंटे में पैसा कमाओ, घर बैठे पैसा कमाओ। अगर इतना है तो लोग फैक्ट्री में क्यों जा रहे हैं यार, सब 1 घंटे भर में लखपति बन जाते हैं। सो मेरा सबको कहना है कि इसे सब स्कीम से बच जाओ। सिर्फ मेहनत और नॉलेज के सिवा पैसा नहीं कमा सकते आदमी, सिर्फ मेहनत और नॉलेज के सिवा नहीं कमा सकते। ये स्कीम्स पे चक्कर में मत पड़ो। चलो, थैंक यू सो मच। Yes, बहुत अच्छा बहुत आपने बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है. It is a very good message to all of us दिया that आपने। yeah, we need to work थैंक यू hard मैम। to earn money. So, okay. Roshni, do you want to perform? Yes, Roshni. Speak. पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती,
उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल की धड़कन में छुपा लूं मैं। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल की धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी अखियां बरसी हैं, तुझसे मिलने को पल पल ये तरसी हैं। कितना सताती है, बहुत रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। बस मैम। बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा था रोशनी. थैंक यू मैम। Okay, Sumit, do you want to perform? मेरा नाम वैसे सुमित है और मैं दिल्ली से रहता हूँ। तो मैं आपके सामने एक सॉन्ग सुनाऊंगा जिसका नाम है अनोखा दस्तूर। तो क्या कोई साथ निभाएगा गैरों का, यहाँ तो अपनों ने अपनों से मुंह फेर लिए। दिल खोखले दिमाग प्लास्टिक के, अरे भाई कोई मरता है तो मरने दो ना, हमें क्या लेना देना, अपनी लाइफ तो सेट है। या अनोखा दस्तूर इस दुनिया में चलता है, घुटता है दम हर पल, जीना खलता है दूर क्या जाना है, घर घर की बात एक भाई की तरक्की से दूजा भाई जलता है। ड्रग्स लेने वाले को गुरु में मिले तालियां, पैसे ना मिलने पे माँ बाप को देते गालियां। हम मेहनत करके जिसने पाई पाई जोड़ी, आज नशे खाते उसी माँ की बेच डाली बालियां। दूसरों को ताने मानो सोच इनकी सीधी, हाँ डाले गंदी नजरें और कहते हैं दीदी। हाँ सबको पता है कब होता वैलेंटाइन, क्या याद है किसी को भगत सिंह की शहीदी। खत्म जज्बात नहीं साथ यहाँ कोई, मिली लात रोई बिन बात मर गया जिसे फसल यहाँ बोई। गरीबों का राम इज्जत बिके सरेआम, फोन बच्चों के हाथ में माँ बाप के हाथ जाम। छोटी सी उम्र में चश्मे लगे हैं, इंटरनेट हाई स्पीड दिमाग में भरा काम। या पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा खोखला जहान है, नकली हम सारे मर गया इंसान। पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा खोखला जहान है, नकली हम सारे मर गया इंसान। पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा खोखला जहान है, नकली हम सारे मर। या पत्थर है दिल सारे बेजज्बाती, नफरत है दिलों में कोई किसी का ना साथी। हाँ शक्लों से प्यार कौन दिल को पूछता, सबको चाहिए हॉट चिक्स लड़का जिसकी छोड़ी छाती। हाँ नेचर से पंगे नेला लगता है सही, हाँ जल जाओगे सारे जब धूप सही ना गई। माँ का ना पूछता तू हाल, एक दफा लगा फोन पे बेबी ने खाना खाया है कि नहीं। जिसको दिन रात एक ही फिक्र है कि मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा, उसको तू रुला रहा है। और दो वक्त मांगे माने पास बैठे हो तो सॉरी माँ मुझे मेरा प्यार बुला रहा है। गीली है आंखें उसकी आंखें कर दे सूखी, देवी को तो पूछे तेरी माँ बैठी भूखी तेरे लिए लड़ी आज। ताना करके बड़ी देखे यार उसकी और आंखें बड़ी, बेटा नहीं तू खाली तेरी रूह। बाप मर गया देता ताली उसे गंदी गाली, मर गया तू सोच तेरी जाली जैसे गंदी नाली। सब यहाँ हवस की नींद सो रहे हैं, प्यार को मार के जिस्मों में खो रहे हैं। क्या घंटा उम्मीद रखूं देश से अपने, जहाँ 3 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। Wow. बहुत अच्छा मैसेज है सीरियसली. एंड थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा रैप था, बहुत ही अच्छा था. थैंक यू मैम। ओके, जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी
होता नहीं मिलके गैरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, हद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, हद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम, दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है, कत्ले अगर करना हो करना धीरे से, उप भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, हद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मैं शुरू करता हूँ। तुमसे कुछ कहने की जरूरत क्या है, तुमसे कुछ कहने की जरूरत क्या है, मोहब्बत अगर यही है तो मोहब्बत क्या है, तुमसे कुछ कहने की जरूरत क्या है, मोहब्बत अगर यही है तो मोहब्बत क्या है, हवाओं से कह दूंगा फिजाओं को बता दूंगा, हवाओं से कह दूंगा फिजाओं को बता दूंगा, नदियों में अगर ये हलचल है तो ये हलचल क्या है, तुमसे कहने की जरूरत क्या है, मोहब्बत अगर यही है तो मोहब्बत क्या है। और क्या करना है बताओ। एक किस्सा बताता हूँ मैम, मैं बाद में क्लोज कर देते हैं। हाँ बताओ। हाँ, तो एक किस्सा हुआ था मेरे साथ में। मेरे लाइफ में इतने किस्से हुए ना, मतलब जो डिक्शनरी रहता है ना, वैसे 4-5 डिक्शनरी उतने किस्से हुए मेरे, इतना अगर लिखने गया तो। एक बार मैं एक 50 मीटर अंतर पे खड़ा था और मेरा दोस्त वहां पर खड़ा था। मैंने उसको फोन किया, ए ब्रो किधर है, चलना चिल करते, थोड़ा सा फन करते। उसने फोन रिसीव किया और बोला चले बाद में बात करते, बिजी, और उसने कट कर दिया मेरा फोन। वो बिजी नहीं था एक्चुअली, वो नाक में उंगली डाल के गोल 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 बना रहा था वो नाक में उंगली डाल के। मैं चलो बोला यार ठीक है, चलो बिजी कुछ तो भी है। मैंने फिर भी उसको फोन किया तो उसने मेरा फोन कट कर दिया। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, अगर तेरे नाक में उंगली डाल के वो जो तुम मटेरियल निकाला है उसका अगर लाडू हो गया है तो मुझे कॉल बैक कर। उसने वो मैसेज मैसेज रीड किया और मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे बाप रे, मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मेरा उस दिन सैलरी हुआ था और मैं उसके ऊपर उसको पार्टी देने वाला था। तो उसको जिस पैसों से मैं पार्टी देने वाला था वो पैसे मैंने साइड में निकाले, गिने। वहां से गया सीधा मैं साइबर कैफे में। साइबर कैफे में एक मस्त टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट में उस मेरे दोस्त का नंबर डाला ऊपर बोल्ड में, और नीचे डाला मैं एक XYZ एक लड़की का नाम डाला, और मुझे मिलना चाहते हो, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे फोन करो। उसका नंबर डाला और नीचे ये किया, और उसके मैंने 4-5 प्रिंट आउट निकाले। और ये जो मुतारिज वगैरह रहती है वहां पर 5 प्रिंट आउट मैंने उसके चिपका दिए। बाद में वो भाई को इतने फोन, मतलब मैंने उसका बाद में वो टॉपिक है ना स्टॉप कर दिया। बाद में एक 5-6 दिन के बाद एक नए नंबर से, एक दूसरे नंबर से उसका मुझे फोन आया है, ब्रो किधर है, चलना चिल मारते हैं, ये मेरा न्यू नंबर है, सेव कर ले। उसको उसका पुराना नंबर ब्लॉक करना पड़ा।
चलना ब्रो किधर है, चिल मारते। तब मैंने उसका फोन कट कर दिया क्योंकि उस टाइम पे मैं नाक में उंगली डाल रहा था। चलो Is it थैंक यू सो मच। ये सच था या फिर जस्ट जोक है? हाँ भाई, प्लस से जुड़ता हुआ जोक है, अच्छा जोक है, बेहतरीन। सच में? ठीक है फिर। ठीक है किरण, हेलो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, मैं ओवर कर रही हूँ। आप ओके, लोग समय निकालते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और ठीक है किरण, फिर थोड़ा सा